Hello friends and welcome back to my YouTube channel. So in the last video lecture we had discussed some questions regarding CTET 2020 paper 2 science subject. Now in this video lecture we are going to discuss another questions regarding CTET 2022 paper 2 science, and this paper I have downloaded from CBSE website, so you can also download and solve. So let's get started and try to solve all the questions regarding science paper. So the first question is, Nina was cycling to the market to buy some grocery items. The market is 4 kilometers away from her home. She travels at a speed of 12 kilometers per hour for first 10 minutes. On her way, she meets her friend Nikhat and stops to chat with her for 15 minutes. She resumes her journey at a speed of 8 kilometers per hour. What is her average speed for the journey? So in this question you can see that कि इस question में हमें थोड़ा सा calculation करने की जरूरत पड़ेगी, and we have to give some time to this question to solve and coming to the correct answer. So the correct answer of this question is that option 1, that is 6 kilometer per hour. So you can do what you can do, that you can try to solve these types of questions, and after practicing these type of question you will be very proficient in solving these types of questions. These questions are actually based on the formulas of distance, speed, etc. Okay, so now the next question is, which of the following will not be helpful in the process of separating a mixture of salt and water? So the option 1 is decantation, second is filtration, distillation, and fourth one is boiling. So in Hindi it is written like लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? And your options are निस्तारण, निस्यंदन, आसवन and उबालना. Okay, so in seated answer key it is given that there is an option given 9. So answer key is 9 given. That means it's answer key 9 means marks are awarded to all the candidates, but from my point of view decantation is correct answer. You can go to decantation also, because decantation is a process for the separation of a mixture of immiscible liquids or of a liquid and a solid mixture such as suspension. Okay, so decantation cannot be used to separate a mixture of salt and water. Actually filtration, I don't think that filtration can also not be used to separate salt and water, because salt and water is a mixture which forms a solution actually. And boiling and distillation is also, I think, not, but you can go to decantation, because it's clear cut saying that decantation is the process of separating immiscible liquids, right? So now the next question is, which of the following properties of light can be used to explain the phenomenon of shadow formation? Light travels in a straight line, light travels at a high speed, light is composed of 7 colors, light does not pass through opaque objects. Your options are A and B, B and C, C and D, D and A. So ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुण धर्मों का उपयोग छाया बनाने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, प्रकाश 7 वर्णों या रंगों से मिलकर बना है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है. और फिर ये ऑप्शन देने के बाद आपको क्या दिया है कि कॉम्बिनेशन दिया है ऑप्शंस का, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज डी एंड ए. 75 क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट है वो फोर्थ ऑप्शन है, दैट इज डी एंड ए. लाइट डज नॉट पास थ्रू ऑपेक ऑब्जेक्ट्स, एंड A1 is light travels in a straight line. So these are the correct option which explain the phenomenon of shadow formation. Okay. Now 76th question is, identify the correct statement from among the following. हमें इसमें से सही statement को पहचानना है. Okay. Statement क्या है? First option is the proportion of fine particles in sandy soil is relatively higher than in the clay soil. The amount of large and fine particles is about the same in clay soil. The proportion of large particles in loamy soil is relatively higher than in sandy soil, and the proportion of fine particles in clay soil is relatively higher than in loamy soil. So ये पढ़ने के बाद आपको एक चीज याद आई होगी कि ज्योग्राफी के चैप्टर्स में हमने टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ा था. उसमें बहुत सारे टाइप के सॉइल पढ़े थे, जिसमें एक लोमी सॉइल होता है, सैंडी सॉइल होता है, क्लेई सॉइल होता है, और उनके डिपेंडिंग ऑन देयर पार्टिकल साइज दे आर क्लासिफाइड. ओके, सो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपके मेमोरी पावर पे जो है पूछा गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये है फोर्थ वन, दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन क्लेई सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन लोमी सॉइल. Okay, now the next question is, deficiency of vitamin X causes bleeding of gums.
This vitamin is essential for absorption of mineral Y and X is found in food Z. Identify X, Y and Z. So ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्टली कहाँ से पूछा गया है, फूड रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमें ये जानना है कि विटामिन के सोर्सेज कौन कौन से हैं और कौन से विटामिन से की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं। अगर आपको ये क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। अब देखिए कि इसमें पूछा क्या गया है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम्स। सो इससे डायरेक्ट आंसर क्या मिलता है कि जो ब्लीडिंग ऑफ गम्स जो है वो किससे होता है, आप बता सकते हैं। इसका आंसर जो है वो है विटामिन सी। सो विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है, डेट इज कॉल्ड स्कर्वी, आई थिंक स्कर्वी होता है। और ये जो विटामिन है वो इसेंशियल है आयरन के एब्सॉर्प्शन में। ओके, आयरन तभी एब्जॉर्ब होता है जब विटामिन सी का सोर्स भी लेते हैं तो आयरन एब्जॉर्ब होता है। और विटामिन सी किस में मिलता है आपको पता है, सिट्रस फ्रूट्स में। यानी जो सिट्रस फ्रूट है समवट यू नो बिटर इन टेस्ट, सो इन फ्रूट्स जो या सोर इन टेस्ट जो होते हैं उन फ्रूट्स में ये विटामिन सी मिलता है। सो तो 77 का करेक्ट आंसर जो है ये ऑप्शन 2 है, डेट इज एक्स इज विटामिन सी, वाई इज आयरन एंड Z इज सिट्रस फ्रूट्स। ओके, सो अगर आपने ये विटामिन वाला जो सेक्शन है अच्छे से किया है, मेमोराइज किया है, उसको समझा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ साइंस। इनमें से कौन से कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नेचर ऑफ साइंस कौन सा आपको ये जो है ये डिस्क्राइब करता है। अगर आपने बीएड में जो सब्जेक्ट पढ़ा है पेडागॉगी वाला, उसमें ये बात नेचर ऑफ साइंस के बारे में बताई गई है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज साइंस इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, साइंस इज सोशल इन नेचर, देन साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क and the scientific method is the only guide for conducting research। तो इसमें से कौन सा बेस्ट स्टेटमेंट है जो नेचर साइंस का नेचर डिस्क्राइब करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड वन, साइंस इज सोशल इन नेचर। विज्ञान जो है प्रकृति में सामाजिक है। सही है, साइंस इज सोशल इन नेचर जो है ये बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है नेचर ऑफ साइंस को। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। Now let us focus our attention to another question, that is cognitive validity in science curriculum means। विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है inclusion of how concepts of science evolve over time, adaptation of content as per the cognitive level of learners, dilution of content, inclusion of appropriate fun elements of science। इसमें से cognitive validity कौन सा है साइंस करिकुलम के अनुसार, cognitive validity क्या है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर्स। अब देखिए कि करिकुलम जो है बनाया जाता है वो डिपेंड करता है कॉग्निटिव लेवल का, कौन से लर्नर जो है, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड होता है करिकुलम, और ये डिपेंड करता है कि कॉग्निटिव लेवल क्या है उस पर्टिकुलर लर्नर की। सपोज कोई अगर लर्नर एज में छोटा है तो उसकी कॉग्निटिव लेवल कैसी है, उसके हिसाब से ये जो है बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव ऑफ learner है। Now another question is according to NCF 2005 in the upper primary stage science curriculum which of the following is recommended। NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है। Concepts should be linked to making sense of everyday experience, concepts should be arrived at from activities experiments, concepts should be taught through disciplinary approach, and along with concept laws and theories needs to be introduced। ठीक है, अब इसमें से NCF 2005 के अनुसार कौन सा प्राइमरी स्टेज के लिए साइंस करिकुलम के लिए रिकमेंडेड है। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले ही बताया गया था सिलेबस डिस्कशन के दौरान कि आप NCF 2005 को अच्छे से पढ़ लें, ताकि आप ये वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। NCF 2005 का जितना भी रिकमेंडेशन है वगैरह ये डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ ले, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि NCF 2005 क्या है और वो क्या क्या रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट है उनके कॉम्बिनेशन दिए गए हैं और उसमें से एकदम करेक्ट जो आपका ऑप्शन है उसको आपको चूज करना है। तो 80 का जो करेक्ट आंसर है वो है 2, दैट इज दिस वन, A and B। कॉन्सेप्ट शुड बी लिंक टू मेकिंग सेंस ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस। जी, अगर आपका कॉन्सेप्ट साइंस का कॉन्सेप्ट जो है वो एवरीडे एक्सपीरियंस से लिंक होना चाहिए, क्योंकि साइंस जो है वो एवरीडे लाइफ में यूज होता है।
और दूसरा जो बी है, कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट। डेफिनेटली अब आप देख रहे हैं कि करिकुलर में एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज इंक्लूड किए गए हैं। हर चैप्टर में एक एक्टिविटी होती है, एक एक्सपेरिमेंट होता है, जिससे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट आंसर जो है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग रिकमेंड जो है वो है ऑप्शन ए एंड बी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, ए एंड बी। सो यहाँ पर हमने पूरा डिस्कस कर लिया है अपना ये साइंस पेपर के क्वेश्चंस जितने बाकी थे। अनदर आई थिंक 10 questions are remaining of science paper which we will discuss in next video. So if you have not subscribed to my YouTube channel, you can subscribe to that channel, that my channel, and for regular updates regarding CTET, more question papers and questions, you can subscribe, and also like, share to your friends so that they will also be benefited. So see you soon in the next video lecture with another 10 questions of science paper, CTET paper, and we will again solve these questions. Thank you so much for watching. Bye bye, take care.